السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم و معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، بفضلہ تعالی ہم سبوں کا اس پاک بجم اور مجلس کے اندر جمع اکٹھا ہونا باعث مسرت اور خوشی کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرنا ہے۔ حب اللہ یعنی اللہ کی محبت دنیا کے ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور محبت کا ایک تقاضا و پیمانہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کی طرف موڑ دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر دین ظاہری طور پر اور باطنی طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ موجودہ دور اور حالات دونوں یہ ہم مسلمانوں کے لیے بطور آزمائش ہیں، ابتلا ہیں، امتحان ہیں۔ اس اعتبار سے کہ کہیں ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور دنیا حاصل کرنے کا شوق و ذوق نہ پیدا ہو۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی وہ آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا، ساتھ ہی ساتھ ناکامی اور کامیابی کے بارے میں بیان کیا، اور اسی طریقے سے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 سے لے کر آگے اللہ تعالیٰ کی حکم اور منشا کے مطابق جہاں تک اللہ چاہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور ان دونوں سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جسے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کی وجہ سے اس کو اپنے لیے خیر اور بہتر نہ سمجھے، بل وہ شر لہم، بلکہ وہ اس کے لیے انتہائی برا ہے، بدترین ہے۔ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں کو ان کی کنجوسی کی وجہ سے قیامت کے دن توق پہنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آیت کے اوپر والے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت، بلکہ اس کو صفات قبیحہ کہا جا سکتا ہے، ایک بری صفت ہے، اچھی صفت نہیں، اس کے بارے میں بیان کیا۔ دین اسلام کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی چیز کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا یا نہیں اس کو چھوڑ دیا گیا، اسکپ کر دیا گیا جس کو ہم اور آپ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ اسلام کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اقوال میں ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔
इस आयत करीमा में बुखल यानी कंजूसी के बारे में बयान किया। अगर हम देखें आपसी बोलचाल या आपसी ताल्लुकात में, तो हमारे लिए एक छोटी सी बात है यार कंजूसी क्या है, लेकिन अल्लाह ने इसको कुरान में बयान कर दिया। इसका मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं, कुरान में उसका जिक्र आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी चीज है। अब उसके बारे में जब बड़ी है तो जानना पड़ेगा, उसके नेगेटिव को भी उसके पॉजिटिव को भी, दोनों चीजों को जानना होगा। तो उसके मनफी असरात क्या हो सकते हैं और मुस्बत असरात क्या हो सकते हैं। देखिए अल्लाह ने कहा वाला यह सबंदन लजीन जब खलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, कंजूसी करते हो, ये ना सोचें कि बीमा आता अल्लाह मिन फज़ली, जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से दे रखा है वह खैरुल लहुम, उसके लिए बेहतर है। समझे? जैसे अल्लाह ने जो कुछ आज हम लोगों के पास कौन दिया, नहीं दिया है। हमको भी दिया अल्लाह ने, जो हमसे अमीर है उसको भी अल्लाह ने दिया, जो हमसे गरीब है उसको भी अल्लाह ने दिया है। यानी इंसान के पास, मोमिन के पास जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है। ये कभी हम ना सोचे कि हमारी मेहनत की बदौलत ये सब हुआ, हमारी मुशक्कत की बदौलत हुआ, हमारे दिन रात एक करने की वजह से सब कुछ हम हासिल की, कभी मुसलमान ना सोचे। अगर अल्लाह की मर्जी ना हो कि पूरी मेहनत कर ले, कोई फायदा नहीं। अल्लाह राजी ना हो हमसे, कितनी मुशक्कत कर ले, अल्लाह देने पे नहीं चाहता तो कोई हमको अता नहीं कर सकता, है ना। अल्लाह कह रहा है कि जिस किसी को भी हमने अपने फजल से दे रखा है, वो उसमें से कंजूसी करके ये ना सोचे कि उसके लिए बेहतर है, हुआ खैरुल लहुम, वो ये ना सोचे कि उसके लिए बेहतर है, बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि उसके लिए बहुत बुरा है, इंतहाई बुरा है, बदतरीन है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दो चीजों का तस्करा यहाँ अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने किया है कि देखिए समाज का बैलेंस कैसे कायम हुआ। आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो है, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, खुद हमारे मुल्क में डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, दीगर कंट्रीज में है। इन लोगों का असल में काम क्या है, जो लाइन से बढ़े हुए हैं, जिस स्ट्रीम से आगे बढ़े हुए हैं, उसमें ये है कि समाज के हर तबके को लेवल पे करके रखना है, ऊंच नीच ना हो सके, ऊपर नीचे ना हो। क्यों? उससे क्या नुकसान होगा? ऊपर नीचे का मामला ये होगा कि जुल्म बढ़ते चला जाएगा और इंसाफ का गला घुटते चला जाएगा। आज यही हो रहा है। देखिए जिसके पास पैसा है, दौलत है, वो अपने सामने के जो गरीब गुरबा है उनको कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, उसको लग रहा है इसकी कोई हैसियत नहीं, या इसके सामने क्या औकात है जो हमारे सामने खड़े हो जाए या बैठ कर बात कर सके, है ना। एक ज़हनियत पैदा हो जाती है, क्योंकि पैसे का तो गर्मी है। जैसे ही पैसा आता है, इंसान का एटीट्यूड, इंसान का रवैया, इंसान का बर्ताव, इंसान का अखलाक ऑटोमेटिक अच्छा से बुरा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर एक किब्र और तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बुख्ल के बारे में बयान किया। क्यों बयान किया? हर समाज को बैलेंस बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम लोग का ये मुआशरा है नियामतपुर है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोनों तबके को पैदा किया। अमीर को भी भेजा, गरीब को भी भेजा, दोनों को भेजा। क्यों भेजा? अब दोनों की आजमाइश हो। आजमाइश सिर्फ गरीब की नहीं होती, इम्तहान सिर्फ गरीब नहीं देता है, अमीर की भी होती है। अल्लाह ने अमीर को इसलिए भेजा कि देखो तुम्हारे एरिया में जो गरीब का ख्याल रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी को देखना है। हम तो उतर के नहीं आएंगे आसमान से, अल्लाह सबके घर तो नहीं जाएगा, लो भाई ये राशन का पैसा, ये इसका पैसा, ये उसका पैसा, समझ में आ रही है। अल्लाह ने अमीरों को पैदा किया कि आप अपने मातहत लोगों को देखें। गरीब इसलिए पैदा किया कि गरीब को अल्लाह टेस्ट करेगा कि जब उसको दुख है, जो गुर्बत है, उसको तो सब्र कर रहा है कि अल्लाह ताला उल्टा पुल्टा बोलता है। तो गरीब को भेज कर अल्लाह अमीर को आजमा रहा है, अमीर को भेज कर अल्लाह गरीब को आजमा रहा है। अर्थशास्त्रियों का यही काम होता है, माशरे के अंदर जो अमीर तबका है, जो मीडियम क्लास है, जो लो क्लास है, उसको बैलेंस बना के रखा जाए, ताकि जब महंगाई बढ़े तो इन पर कोई असर ना हो, कोई बोझ ना हो। अगर ये लोग सही तौर पे अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि महंगाई बढ़ने की सूरत में अमीरों का मसला तो हल हो जाएगा, गरीब मसला फंस जाएगा। अभी तो कोरोना आया, देखिए क्या हालात हो गए। कोरोना के टाइम पे वो लोगों का जिनकी आमदनी रोज की कमाने और खाने के लिए तो बिल्कुल एकदम सड़क पर आ गए। उनका तो अकल ही काम नहीं किया कैसे अपने परिवार को लेकर चले। आम दिन था तो सुबह काम में गए, शाम को कुछ कमा कर चले आए। अब तो सब कुछ बंद है, बिल्कुल लॉकडाउन है। अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि जिनको हमने अपने फजल से दे रखा है, एक तो ये 10 मिनट इस आयत करीमा में कि जो कुछ हमारे पास वो अल्लाह का फजल है। मिन फजल एक अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फजल। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चीजें बयान करना चाहता है। इस आयत करीमा से पहला वो शख्स मुराद है
جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کو بخیل کہا گیا۔ اللہ نے دولت دیا ہے اور وہ دولت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یہاں اللہ کے راستے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے راستے کون کون سے ہیں؟ مساجد میں خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، مدارس پر خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، یتیم اور بیواؤں پر خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا اللہ کا راستہ ہے، پڑوسیوں کا دیکھ بھال کرنا جو غریب ہے غربا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، سب کے سب اللہ کا راستہ ہے، رشتہ داروں کو دیکھنا جو ہم سے کمتر ہے یہ سب اللہ کا راستہ ہے، یعنی ساری چیزیں فی سبیل اللہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے پیسہ چاپ چاپ کر بچا لیا تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ صاف صاف اللہ نے کہا ہوا خیر اللہ ولا یحسبن، یحسبن مطلب گمان نہ کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ چیزیں کیا ہے اپنی بخل کی وجہ سے اپنی کنجوسی کی وجہ سے بچا لیں گے تو وہ خیر اللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک وہ طبقہ ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا اور وہ صحیح طور پر زکات نہیں نکالتے، جن کو اللہ نے نوازا اور وہ زکات نہیں نکالتے۔ زکات کا سسٹم کیا ہے؟ کہ اللہ نے زکات کے سسٹم کو لاگو کیا، یہ بھی تو بڑے بڑے ارتھشاستری اس چیز پہ قائل ہیں، یہ بڑا بہترین اور پاکیزہ دن ہے۔ دیکھیے اپنے کمزوروں کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر زکات کا سسٹم لاگو کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ زکات اسلام کی 5 بنیادی پلر میں سے رکن میں سے ایک رکن ہے زکات۔ دیکھیے زکات کی اہمیت دیکھیں کہ جو 5 بنیاد اسلام کے اس میں سے کیا ہے؟ زکات۔ کیوں زکات کو اللہ نے فرض کیا؟ اس لیے کہ امیروں سے پیسہ لے کر غریبوں پر تقسیم کیا جائے گا، امیروں سے لے کر غریبوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ اور حقیقت یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اگر ہم صحیح طور پر زکات نکالیں، حقیقت میں صحیح طور پر زکات نکالیں، زکات ہم کیسے نکالتے ہیں؟ من مطابق زکات نکالتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس اللہ نے 1 کروڑ دیا ہوا ہے تو 1 کروڑ کا آپ سوچیں کہ 20% کتنا ہوگا؟ 20 لاکھ روپیہ ہوگا، لیکن وہ نہیں نکالے گا 20 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ ہوگا۔ 1 کروڑ کا 20% 2.5 لاکھ، 2.5% ہوا نا؟ نہیں 2.5 لاکھ وہ نہیں نکالے گا۔ 2.5 لاکھ کیوں نہیں نکالے گا؟ کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ 2.5 لاکھ کو کمانے میں ہم کو 3 مہینے لگتے ہیں، ہم زکات کیوں نکالیں؟ اب اگر ہم زکات صحیح طور پہ نہیں نکالیں گے تو یہ بوجھ کس پر بن رہا ہے معلوم ہے؟ غریبوں کے اوپر بوجھ بن رہا ہے، کیونکہ اللہ نے سماج کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے بتایا نا کہ سماج کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے امیر غریب دونوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ جنہیں اللہ نے اپنا فضل دے رکھا ہے وہ اس میں سے کنجوسی کر کے جو بچا لیتے وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، تو کیا ہے؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ اس کے لیے بہت بدترین ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ کنجوسی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہ میں تجھ سے کنجوسی کی پناہ مانگتا ہوں۔ کنجوسی بہت خراب صفت ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اس صفت کو ہم اپناتے دوسروں کے، جیسے دوست وغیرہ پکڑ کے پارٹی میں مانگ لیتے، ہم اپنے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ اتنا اپنے اندر گھس جاتا ہے کہ ماں بھی بولتی ہے بیمار کے بیٹا دوا لا دو، تو ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کو نہ دکھا کر جا کر جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا لے چلے۔ کنجوسی یہ بھی ہے، اب ڈاکٹر دکھائیں گے فیس لگے گا، اب دوا لینا ہوگا، چلو جا کر میڈیکل لیبل پہ لینا پیراسیٹامول دو، سر درد بدن درد ہے کام نکل گیا۔ کنجوسی بہت خراب چیز ہے۔ کنجوس انسان کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہے اور اللہ کے نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، سماج تو بہت دور کی بات ہے۔ فراخ دلی جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کیوں رہا ہے؟ سوچنے والی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کو دے کیوں رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ سماج کے طبقے کو ہم کو بیلنس کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی لاکھوں روپیہ اس کا بینک بیلنس ہے نا، اس کے دروازے پر کوئی مانگنے والی عورت یا کوئی مرد ایسا جو پریشان، حقیقت یا اس کے پڑوس میں کوئی آدمی ہے اس کا آپریشن ہونے والا ہے، 2 لاکھ روپیہ آپریشن کا خرچ ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارا پڑوسی کو 2 لاکھ کی ضرورت ہے تو ہم ہارڈلی کتنا دے سکتے سوچیے، اور ہمارے پاس 50 لاکھ کا بینک بیلنس، ہمارے پڑوس میں پریکٹیکل بات قرآن کی آیت دیکھیں، ہمارے پاس 50 لاکھ کے بینک بیلنس ہے، کبھی بھی ہم چیک پہ سائن کر کے پیسہ اٹھا سکتے ہیں، ATM سے وڈرا کر سکتے ہیں۔ اب بغل میں میرا پڑوسی ہے اس کو 2 لاکھ ایک دم امیڈیٹلی چاہیے، کل اس کا آپریشن ہے، ہم اپنے دل کی بات سنیں کہ ہمارا دل زیادہ سے زیادہ کتنا دیتا، بہت زیادہ اگر ہم خوش ہو گئے تو 5,000 آخری خوشی ہے، اس کے بعد خوشی ہے ہی نہیں۔ تھوڑا اور کوئی ہم کو جو تھا دین اسلام کی بات بتا دی اس سے بھی زیادہ خوش ہو گئے 10,000، اس سے زیادہ ہم خوش نہیں۔ سوچنے والی بات ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے جو نبی کبھی بھی ان چیزوں کو منہ نہیں دیتے، پریشان ہے
पहले उसकी मदद करो, उसकी जान बहुत कीमती है। वो अल्लाह ने वो आयत कहा ना कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचे उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो 10 से ऊपर तब नहीं जाएंगे, ये बहुत ज्यादा हो गया, और उसके बाद कहेंगे सब हम ही ठेका ले लेंगे। अरे हमको अपने अमल की फिक्र करनी है, दूसरों की नहीं। हम देंगे तो ये क्यों सोचते कि खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अल्लाह उससे बढ़कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह ने यहाँ यही बयान किया कि जो कुछ हमने अपना फजल जिनको दे रखा है वो उसमें से कंजूसी करके अपने लिए बेहतर ना समझे। और आज अगर मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये अमीर गरीब की जो दराज एक दीवार पैदा हो गई है, आज गरीबों को अजीब व गरीब नजर से देखना, जिल्लत भरी निगाहों से देखना, उनको इंसान ही तस्वुर ना करना, ये जो आज भेदभाव पैदा हुआ है इसकी सबसे बड़ी वजह है कि फी सबिलिल्लाह खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में। जो अल्लाह ने दे रखा है हमें एक डर पैदा हो गया कि अगर हम यही सब चीज को उड़ा दिए, अल्लाह भी इस्तेमाल करके उड़ा दिए तो फिर हमारी नस्ल क्या करेगी, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। ये वो नेगेटिव सोच है जिसकी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत में कोई जकात लेने वाला एक आदमी है, कैसा सिस्टम वो बनाए, वो कैसे अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स। सोचिए जब किसी को पकड़ा जाता भाई आप जकात ले लीजिए, आप हमसे लीजिए ना, हम भी जकात हमको देना है। सोचिए आज जकात लेने के लिए ऐलान करेंगे तो लाखों की तादाद में लोग खड़े होंगे। वो कैसा मतलब कि वो अपना एक गुड गवर्नेंस चलाएं कि ऐलान होती थी मस्जिद के भाई जकात की रकम मस्जिद में आ चुकी है, जिनको लेना आकर ले जाए, साल गुजर गया कोई वो बैतुल माल में चले। लेने वाला एक आदमी नहीं पहुंचे, देने वाले सब पहुंच रहे, भाई हमसे जकात ले लीजिए, मेरा इतना परसेंट, मेरा इतना परसेंट, मेरा इतना परसेंट निकला, मेरा इतना रुपया निकला, इतना अनाज निकल गया। आज क्यों नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं कि मुसलमान कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है मुसलमानों को, सब है। वो क्यों नहीं रहा है? क्यों? दिल से नहीं कर रहे। हम सबको अपनी पड़ी हुई, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए। हम और आप किसके लिए पैदा हुए? एक दूसरे अपने भाइयों के लिए। यहाँ तो सेल्फिश जिंदगी चल रही है, हम हमारे परिवार हमारे बच्चे, बाकी 10 रुपये जुम्मा में दे देंगे, कोई फकीर आ गए तो एक फुल की चावल दे देंगे, ये दे देंगे। इसको हम बहुत ज्यादा खैर समझ रहे हैं, इसको हम क्या समझ रहे हैं, बहुत हमने डोनेशन कर दिया, इतना काउंट कर दिया कि अब हमारा कोटा पूरा हो। हमने अपने हाथ को खींच लिया, अल्लाह से ऐसे ले रहे हैं और देने से एक उंगली से दे रहे हैं, तो क्या होगा समाज के अंदर? अल्लाह ने कहा, देखिए क्या कहा, बल हुवा शर्रुल लहुम, जो कंजूसी की वजह से अपने माल को रोक के रखे हुआ है और सोच रहा है कि बेहतर है, नहीं बल्कि वह शर्रुल लहुम, बहुत बदतरीन अमल है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा, सयुतवक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, मा बखिलू बिही, उनकी कंजूसी की वजह से यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन, क़यामत के दिन, सयुतवक़ून, उनको तोप पहनाया जाएगा, आग का तोप पहनाया जाएगा। सोचिए कंजूसी की वजह से, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सब दुनिया में कर रहे हैं, कंजूसी भी कर रहे हैं। तो ना नमाज कंजूसी से बचा पाएगी, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। समझ आ रहा है ना? मध्यान्ह इम्तिहान देते हैं, साइंस में अच्छा नंबर है, ज्योग्राफी में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा है, उर्दू में अच्छा है, इंग्लिश में नंबर कंपार्ट हो गए, क्या पास होंगे? एक सब्जेक्ट में कंपार्ट हुए यानी हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब हमको फिर से एग्जाम देना अगले साल। सेम वही सिस्टम इस्लाम का। कभी अब ना सोचिए कि नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी, ज़कात है तो कंजूसी में पास हो जाए, नहीं। अल्लाह ताला के हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स है, एक में नंबर कम हुआ सब के सब बेकार हो गए, वही सिस्टम अल्लाह ताला का। सोचिए अब अल्लाह कह रहा है कि क़यामत वाले दिन इन कंजूसों को तोप पहनाया जाएगा, गले में आग का। वो हदीस याद होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल क़यामत वाले दिन वो लोग जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, साइंस सेहत के तिजोरियों में, लॉकरों में रखते हैं, कल वही माल जो है उनका सांप की शक्ल में आएगा। गंजा सांप होगा, जहरीला सांप, और गंजा सांप की शक्ल में माल, जैसे ये डॉलर है तभी सांप बन के आ जाएगा क़यामत वाले दिन। अभी देखिएगा तो डर जाएगा, अरे भाई कहाँ से आ गया, वो सांप बोलेगा, उसको नहीं पहचाने। अरे दुनिया में बहुत मोहब्बत से हमको रखते थे, बड़ा हिसाब किताब करते थे, डायरी वगैरह सब तुम्हारा था मेरे बारे में, भूल गए? अनाकंजुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, कहाँ भाग रहे हो तुम हमसे? दुनिया में मोहब्बत करते थे, यहाँ भी मोहब्बत करो, यहाँ क्यों भागो? वो चीज क्या होगा, सांप बन के शक्ल में उसके पीछे जाएगा, भागेगा उससे,
कहीं खा ना जाए, कहीं काट ना ले, कहीं डस ना ले, कहीं निगल ना ले, तो कहेगा अरे भाई हम तुम्हारा वही मान है जो दुनिया बड़ी मोहब्बत से रखती है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे दरवाजे पर अगर कोई आए, जैसा अल्लाह ने ताकत दिया उसी हिसाब से खर्च करें। अगर हमारे पास 50 लाख का प्रॉपर्टी है, माल है और पड़ोसी को 2 लाख की जरूरत है, पूरा पैसा दे। ये कभी ना सोचें कि इसे खत्म हो जाएगा। ये दिल ही तो हम लोगों का नहीं हो रहा है। यही वजह है कि गरीबी बढ़ रही है। पैसा किसी एक तबके के पास चला जा रहा है, सब तबके में तकसीम नहीं हो रहा है। हर मालदार गरीब पर खर्च करने लग जाए। ये ज़कात का सिस्टम अल्लाह ने इसीलिए लागू किया कि अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम किया जाए। अब ज़कात के बारे में हल्का सा समझते चले। ज़कात भी हम निकालते हैं तो ढंग से नहीं निकालते, तरीके से नहीं निकालते। ज़कात का मतलब ये हुआ, चाहे सोना चांदी का ज़कात हो, चाहे रुपया पैसे का, पूरा आप काउंट कीजिए। तो ज़कात का भी क्या सिस्टम है, मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपया है तो अपने हिसाब से 10 रुपये निकाल, 20,000 निकाल दिए अपने हिसाब से। तो अल्लाह ताला का हिसाब चलेगा कि हमारा हिसाब चलेगा। सवाल ये, हम यहाँ से जाते हैं कलकत्ता ट्रेन से जाते हैं तो हमारा कानून चलेगा कि इंडियन रेलवे का कानून चलेगा? तो ट्रेन हमारे हिसाब से चलेगी कि अपने हिसाब से चलाएगी? हम कितना भी रिक्वेस्ट कर दें तो ये ट्रेन को जो है यहाँ थोड़ा रोक दीजिए, थोड़ा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए, वो नहीं सुनने वाला। आपको जरूरत है तो आकर टिकट बुक करें, तो बताइए, हम थोड़ी आपके घर जाएंगे पकड़ के लाएंगे, चलना ही होगा आपको। नहीं, कानून तो रेलवे का चलेगा, हमारा नहीं चल सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का जो तरीका बताया है, वो ज़कात ना निकालना, इसका मतलब ये गरीब का हक खा जाना है ना। गरीब का हक खा जाना, और समाज के अंदर ये गरीबी और अमीरी के दरार को और मजबूत करते हैं। ज़कात अगर हम ढंग से निकालने की शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2-4 सालों में गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। निकालते नहीं, सवाल तो ये है। फिर आगे अल्लाह ने कहा, देखिए वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान का जो मिरास है, जिसको उर्दू में वरासत कहते हैं वरासत, मिरास उर्दू का भी लगता है, सब अल्लाह के लिए। ये अल्लाह ने क्यों कहा कि वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द? क्यों अल्लाह ने कहा? अल्लाह कहना चाहता अमीरों से कि जो तुम्हारे पास है तुम्हारा नहीं है, तो तुम क्यों अपना समझते हो? तुम्हारा मेरा है। अल्लाह कह रहा है कि जमीन व आसमान की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी है, उसका मालिक अल्लाह है। हमने तुमको गाइड करने के लिए पैसा दे दिया, ये लो पैसा, बाल बच्चों की परवरिश करो, और जो अल्लाह के रास्ते हैं फी सबीलिल्लाह, उसको कहते हैं अरबी में इन्फाक फी सबीलिल्लाह, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए, हम तुमको कल पकड़ेंगे। अगर हमारा पड़ोसी भूखा सो गया तो हम पकड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि इमाम साहब पता कैसे चलेगा उसे घर पका है कि नहीं पका? तो हम रिलेशन बनेंगे नहीं कि अच्छा तो पता कैसे चलेगा? आए दिन तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है पड़ोसी से, आपका खिड़की का शेड उधर पड़ रहा है, आपका इधर निकल गया, मेरा उधर निकल गया, तो सब रिलेशन ही सही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि वो उसके यहाँ पका कि नहीं पका? पड़ोसियों के बारे में तो हमने कभी जाना ही नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक बात कहते थे, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो। सहाबा आपस में डिस्कशन करने लगे, लगता है कि मिरास में भी हक दे देंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इतनी वसीयत करते थे कि देखो मेरे भाइयों, पड़ोसियों के हक अदा करो, पड़ोसियों के साथ इतने सुलूक करो। सहाबा को लगा, आपस में बातें करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जब तुम लोगों के जायदाद तकसीम होंगे तुम्हारे वालिद के, तो पड़ोसी को भी हिस्सा देना। ऐसा लगने लगा। अब ऐसा अगर लग रहा है किसी को तो सोचे कितनी बार वसीयत करते हुए, बार बार बोलते हुए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारा पड़ोसी से नहीं पड़ता, नहीं बनता है, बिगाड़ के रखे हुए हैं। लेकिन पड़ोसी अगर भूखा सो गया, बगैर इलाज के मर गया, और उतना पैसा हमारे पास था, तो याद रखिएगा मेरे भाई, कोई हज उम्रा काम नहीं है क़यामत के दिन। बात याद रखिए, अल्लाह ने कहा ना सयतवफ़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, हम क़यामत वाले दिन इसको पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे नहीं, आग का तोप पहना देंगे उसको गले में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। फिर अल्लाह ने कहा देखो जमीन व आसमान की जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की। अल्लाह जिसे चाहे दे, जिसे चाहे छीन ले। पलक झपकते बादशाह फकीर बन गया, फकीर बादशाह बन गया। अल्लाह जिसे चाहे बना दे। इस कोरोना में कितने मिसाल आपने देखे होंगे, जो कभी मालदार हुआ करते थे, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं है। अल्लाह ने एक आफत भेज दिया और उसके जरिए से उसको गरीब कर दिया, एक जरिया बन गया उसका। फिर अल्लाह ने कहा वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, जो तुम अमल करो अल्लाह जानता है। हम अगर रात की तारीकी में कोई काम कर रहे हैं, हमको लग रहा कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। जमीन के अंदर हम सबों में चले जाएं और वहां जाकर कोई काम करें तो अल्लाह उसको जानता है। समंदर की गहराई में कितनी मछलियां हैं, कितनी बड़ी कितनी तादाद है, सब अल्लाह जानता है। आसमान की ऊंचाई पर क्या एक्टिविटी अल्लाह जानता है। अल्लाह को हर चीज की खबर है, कोई चीज अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है।
उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 181 181 लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। तहकीक के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों की बात को भी सुन लिया जो कह रहे थे कि बेशक अल्लाह ताला फकीर और हम मालदार हैं। इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, बेशक अल्लाह फकीर है, व नहनु अग़निया, और हम क्या है, मालदार हैं। देखें सूरह बकरा आयत नंबर 245 में चीज गुजर चुकी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बयान किया कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। अल्लाह ने बयान किया तुम में से कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। अब इस पर गौर करें कि अल्लाह कह रहा है कि तुम में से कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दे। कर्ज से हसना किसको बोलते हैं, बेहतरीन कर्ज दे। अब ये बात जब यहूदियों ने सुना तो यहूदी कहने लगे करे तुम्हारा रब जो है फकीर है क्या, कर्ज मांग रहा है। इस आयत का देखिए नेगेटिव बना निकाला उन लोगों ने कि तुम्हारा रब जो है कोई फकीर है जो कर्ज मांग रहा है। जब वो रब है, जब वो अल्लाह है, तो कर्ज क्यों मांगेगा। जबकि इस आयत को उन्होंने पूरा नहीं बयान किया। पूरा जो आयत है अल्लाह ने जो बयान किया था कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो बेहतरीन कर्ज दे। कर्ज मतलब क्या होता है, देखिए आम तौर पर हम आपसे कर्ज लेंगे कि भाई हमको 5 रुपया दीजिए, हम परसों लौटा देंगे, तो इसका मतलब होगा हमको लौटाना है ना। कर्ज मतलब लौटाना है। अल्लाह भी तो लौटा रहा है, क्या लौटाएगा, नेकी लौटाएगा, अज्र लौटाएगा। अल्लाह को जरूरत नहीं, सारे खजाने अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह हमारे हक में बेहतर बात बोल रहा है कि कर्ज हसना तो मतलब क्या हुआ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ये कर्ज हसना है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ये कर्ज हसना है। अब अल्लाह तबारक व तआला भी लौटाएगा इसको, इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ कर्ज का इस्तेमाल किया। कर्ज का मतलब ये हुआ कि जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वो तुम्हारे पास लौट जाएगा बेहतरीन अज्र की शक्ल में। दुनिया में भी हो सकता है अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर दे आपको, अगर नहीं दिया इन केस तो आखिरत में कंफर्मेशन है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बेहतरीन शक्ल सूरत में, बेहतरीन अज्र में, बेहतरीन बदला में अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। तो अल्लाह ने कहा यहूदियों को उन बात के बारे में, यहूदी कहने लगे नहीं कैसी आयत उतर गई, तुम्हारा रब जो कर्ज मांग रहा है जबकि तुम कह रहे हो अल्लाह सबको नवाजने वाला है। अल्लाह ने कहा आगे सनक्तुबु मा कालू, जो कुछ कह रहे हैं उसको लिख लो, जो कह रहे तुमको आप टेंशन ना ले, घबराएं नहीं, हम इसको लिख रहे हैं क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं। वक़तलहुमुल अंबिया बगैर हक की, और बगैर हक के नाहक अंबिया को जो कत्ल किया, नबियों को जो कत्ल किया है उसको भी हम लिख लेंगे, उसको भी हम लिख लेंगे। वनकुलू, और क़यामत के कल उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ज़ुक़ू अज़ाबल हरीक़, ये क्या है, इस अजाब का मजा चखो, जलने वाले अजाब का, हरीक़ कहते जलने वाला अजाब का मजा चखो। किन लोगों के बारे में, यहूदियों के बारे में, अहले किताब जिसको कहते हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया था ना उस आयत करीमा का, अल्लाह ताला कर्ज मांग रहा है। हम सुनने को देते हैं सबको, तो हम अल्लाह ही मांग नहीं रहा। मतलब ये देखिए इसकी भी एक और बहुत बड़ी बात है, कुरान का तर्जुमा हम मुसलमान भी नहीं समझते और बहस करते हैं, बहुत से मकाम पे है हमको समझ नहीं है और उस आयत को लेकर हम भाग रहे हैं और सबको फिट जहाँ तहाँ फिट कर दे रहे हैं। उलमा की जरूरत क्यों पेश है, उलमा इस चीज को बेहतर जानते हैं। अगर हम उलमा से राब्ता नहीं रखेंगे और जो गैर आलिम है उससे अगर राब्ता रखेंगे तो क्या समझाएगा, तो उसको पता ही नहीं कि आयत का तर्जुमा क्या हो रहा है और माना क्या हो रहा है और कौन सी आयत कहाँ पर नाज़िल हुई। जैसे इन लोगों ने, यहूदी ने समझ लिया कि अल्लाह कर्ज मांग रहा है, नहीं कर्ज नहीं मांग रहा है, अल्लाह हमें रगबत दिला रहा है कि हम अल्लाह के लिए कर्ज हसना मतलब नेकी और खैर के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करें। खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बढ़ा कर देगा। सूरह बकरा की बात गुजर चुकी है कि अगर तुम में से कोई अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करे अल्लाह को 700 गुना कर देगा। तो ये ईमान और अकीदा होना चाहिए ना, ईमान भी कमजोर हो गया, अकीदा भी गड़बड़ हो गया। हमें लग रहा है कि नहीं अगर हम दे देंगे तो खर्च पहले से हिसाब किताब जोड़ के रखे हुए हैं, दूध वाले का इतना हुआ, रेंट इतना हुआ, ये इतना हुआ, रिचार्ज का इतना हुआ, इतना हुआ, जो जाड़ के लग रहा है इसमें कम खर्च कर दी तो फिर एक तरफ तो बोझ पड़ जाए। क्या हमारे रोजमर्रा के अखराजात में कहीं पर सदका खैरात का लिस्ट बना हुआ है? सोचिए अपने आप से कि हमको दूध वाले को इतना देना है, गुलदारी वाले को इतना देना है, गोश्त वाले को इतना देना है, रेंट इतना देना है, फिर कपड़े का, फिर स्कूल का बच्चों का फीस इतना देना है, सदका खैरात कितना निकालना है। सोचिए हम लोग कमाने वाले, ये वो सवाल चुभने वाले सवाल है, इसको क्यों स्किप कर दें। घर में बरकत हो रही सदका खैरात से, मुसीबत टल रही सदका खैरात से, अल्लाह नवाज रहा है सदका खैरात से, अल्लाह कह रहा है कि 1 रुपया तो हम 700 रुपया देंगे, तो इसको हमने क्यों छोड़ दिया। ये भी तो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन लिस्ट से गायब है, इसकी कोई लिस्ट नहीं। यही वजह है कि जब इन लिस्ट का हम एक टोटल हिसाब करते हैं और फिर जब खर्च की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं, तो लिस्ट ही में नहीं है। अब
तो पूरा पैसा सेट हो गया है, अगर हम देते हैं तो ये हमारे पर इजाफी बोझ होता है। सदका खैरात तो कभी ना देते, जितना अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने अगर डेली 10 रुपये कमाते हैं रुपये अल्लाह के रास्ते, ये सोचे कि हम 9 रुपया कमा रहे हैं, सोच ले कि हम 9 रुपया कमा रहे हैं। आज देखिए बहुत सारे हमारे मुसलमान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े ओहदों पर आइज़ किया है, उनसे जब भी बात होती है एक मस्जिद की तामीर के लिए, तो अल्लाह ने अभी तक कोई ऐसा मुसलमान ही नहीं बनाया जो अकेला तामीर कर रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ पैसा नहीं, हिंदुस्तान में बहुत पैसा, ऐसा नहीं कि मुसलमान पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो काबिलियत एलिजिबिलिटी जो है अल्लाह ने खत्म कर दिया। ऐसा 10 ऐसा मुसलमान नहीं है जो एक फ्लोर की ढलाई करवा देंगे, 10 लोग नहीं हो सकता, ऐसा है कोई नहीं सकता। अल्लाह ने उनके जो टैलेंट खत्म कर दिया, छीन लिया। जो मुसलमान मगरिब और मशरिक की हुक्मरानी किया करते थे, रोम और फारस जो उस वक्त की सुपर पावर थी, फतह हो गया। किन्होंने किया? हम ही जैसे ईमान वाले थे, बल्कि हमसे बेहतर ईमान वाले थे, हम तो कुछ नहीं उनके सामने। आज मुसलमान एक इदारा नहीं चला पाया, एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अल्लाह ने छीन लिया। आप कहीं नहीं पाएंगे, तो देखिए क्या फायदा, आपको क्या फायदा देकर, आपसे होगा ही नहीं। जो मुसलमान अफ्रीका तक झंडा गाड़ दिए इस्लाम का, मुसलमानों का, आज उनसे एक छोटा सा इदारा बना के दे दी, आपस में लड़ गए। सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं कि दौलत वाले पैसे वाले हम लोग में नहीं, बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल से वो चीज निकाल दिया है, क्योंकि वो टेस्ट किया शुरू कर अल्लाह ताला। और जो जितना पैसा है उतना रो रहा है, वो उतना रो रहा है कि अल्लाह तुमको इतना दे रहा है और तेरे घर के लिए हमारे पास पैसा आ रहा है। कितनी वाली बात है, अल्लाह तूने दिया तो मेरा घर बन गया टाइल्स और मार्बल का, अब तेरे घर की बात है, जो पैसा मेरा खत्म हो गया, इसका मतलब हम बेगैरत हैं, इसका मतलब हम बेगैरत हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन घर किसका है? अल्लाह का घर है। क्या अल्लाह घर से बेहतर कोई घर हो सकता है किसी का? किसी का नहीं हो सकता। जिस अल्लाह ने हमको दिया, हमने उसके पैसे से अपना घर बना लिया, आलिशान घर बना। जब उस अल्लाह के घर के बनाने की बात आई, तो अब हम हिसाब किताब में जुड़ गए। बहुत खुश हो गए तो 500, थोड़ा और खुश हुए तामीर मस्जिद में 1000, थोड़ा और खुश हो गए तो 2000 उसके बाद। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, 2000 का मतलब तुम सीना पूरा फुला के चलेंगे हफ्ता, 2000 तुम 2000। मेरे भाई सोचिए हम कहाँ आते हैं। इतनी प्यारी किताब, इतनी बेहतरीन किताब, इतनी मुकद्दस किताब गलाफ में लपेट के घर में बंद कर दी। जैसे लग रहा है कि जेल में हम नहीं, कुरान कैद कर दिए इसको, ना पढ़ रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, ना घर के लोगों को बता रहे हैं। एक अरसा और महीना गुजर जाए कि घर ऐसा है मुसलमानों का जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, महीने गुजर जा रहे हैं। बाद घर तो ऐसे ही मिलेंगे, रमजान टू रमजान, रमजान में गला खुला खिंचाया, इसमें रखाया, नेक्स्ट रमजान। इतनी अच्छी अच्छी बात क्या करें। देखिए दुनिया में कितने लोग चले गए दुनिया से, है ना, क्या लेकर गए दुनिया से, सोच क्या लेकर गए। इंसान जब मर जाता है, अल्लाह के रसूल ने कहा 3 चीज उसके साथ जाती है। 3 चीज जो है इंसान के साथ कब्रिस्तान जाती है। एक उसका माल जाता है, एक उसका औलाद जाता है, एक उसका आमाल जाता है। एक चीज जो है वो बड़ी सच्ची दोस्त है, बड़ी वफादार दोस्त है, जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं, वो है आमाल। चाहे अच्छी हो या बुरी, वो साथ में छोड़े, वो कब्र में उतर जाएगी उसके साथ। भाई रुको, हमको कहाँ छोड़ जा रहा है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब 2 चीजें जो रिटर्न आ जाएंगे, औलाद और माल वापस आ जाए। जिस माल की ये जिंदगी तबाह कर दी है, वो कितनी बेवफा है माल कि कब्र में दफनाने के बाद वहां से निकल गई। औलाद भी निकल गई, औलाद है वो भी दफनाने के बाद चला गया। कौन चला गया अंदर में, साथ में जो दोस्ती निभाया, चाहे बुराई सही, चाहे बुरे अमाल हो, चाहे नेक अमाल हो, वो कब्र के अंदर चला गया। वही साथ देगा, सच्चा साथी वही। इसीलिए हम नेक अमाल की तरफ फोकस करें। अल्लाह ने दौलत दिया है, दौलत कमाना कोई गलत बात नहीं, उस दौलत को रोक के रख लेना ये बहुत गलत बात है। मरने वाला मर गया बगैर इलाज के, भूख से मर गया, बीमारी से मर गया, हम चाहते तो उसको बचा सकते थे, लेकिन हम नहीं बचाए। सोचे अल्लाह हमको अपने घर बनाने के लिए 50,000 महीना दे रहा है। अब अल्लाह के घर की देने की बात आई है तो हम सबका ठेका लिए हुए हैं, सब कुछ नहीं देगा तो सब हम भी देंगे, मिला के हो जाएगा। क्यों हम क्यों सबके अमाल की फिक्र करें, अपने अमाल की फिक्र करिए। हम कितना दे सकते हैं अल्लाह के लिए? क्या ये गलत है कि सही है? जो अल्लाह दे रहा है उसके उसी के पैसे से अपना घर हम टाइल्स मार्बल का बना लिए। अल्लाह के घर की जब देने की बात आ गई तो हम उसमें कतरा रहे हैं। तो कैसी वफादारी मेरे भाइयों। अल्लाह ने यहाँ पे वही बात बयान किया कि हम लिख लेंगे, सनक्तुबु मा क़ालू, जो कुछ कह रहे उसको हम लिख लेंगे। अंबिया को नाहक कत्ल किया उसको भी लिख लेंगे। व नक़ूलु, हमसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जो है अजाब जो है चखो, जलने वाला अजाब। फिर आगे अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 182 182 में,
ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये सब क्यों हो रहा है? अजाब चखो, ये उनके हाथों की करतूत है। यद मैंने हाथ होता है अरबी के अंदर, ऐदी उसकी जमा आती है, जिसे कहते हैं रफुल यदैन, दोनों हाथों का उठाना। तो ऐदियकुम बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये जो कुछ हो रहा है जिसके साथ भी, वो उसके हाथों की कमाई है। अगर हमारे साथ नेकी हो रही है, कब्र में अजाब नहीं हो रहा, आराम पहुंच रहा है, जन्नत की बशरत मिल रही है, ये हमारे हाथों के करतूत है। दुनिया में अच्छे थे, नेकियां करते थे। अगर कब्र में अल्लाह ना करे किसी को अजाब हो रहा है, तो ये भी हमारे हाथ एक करतूत है। दुनिया में हम नहीं बात समझे, हमको लगा कि यही सब कुछ है, और क्या हुआ तो उसके पीछे भागने लगे। अब क्या है, तो चको मेरा अजाब जलने वाला। वो अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह ने क्या कहा? और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बंदा जैसा करेगा वैसा पाएगा। अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह इंसाफ करता है। अल्लाह ने सब कुछ कुरान में खोल खोल कर बयान कर दिया। एक वजह ये भी है मेरे भाइयों कि अगर हम नेक अमल नहीं करते हैं तो हम कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ते, वरना इतनी अच्छी किताब है कि जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारे दिल में ईमान मजबूत होता चला जाएगा। इतनी अच्छी बात, इतनी प्यारी बात, इतनी बेहतरीन बात अब तक हम नहीं जानते थे। जिंदगी में 50 खत्म कर चुके, 100 खत्म कर चुके। जब से कुरान पढ़े तो हर साल रमजान में 2 खत्म होता है, फिर ये 4 खत्म, फिर 5 खत्म, लेकिन कभी तर्जुमा खत्म नहीं हुआ। हमारी जुबान उर्दू है, हिंदी है, ये तो अरबी में है। अब इसी को पढ़ रहे हैं कि शराब पीना हराम है, और जाके शराब पी ले। पता नहीं कुरान में भी पढ़ कर आए एक पन्ना, उसमें लिखा है शराब हराम। सोचिए, तर्जुमा बहुत जरूरी है। मैसेज क्या है, पैगाम क्या है, अल्लाह बोलना क्या चाहता है, ये हम जाने। असीम में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, हमारे पहले के जो आबा अजदाद, यानी हम लोग के अबू दादा या परदादा जो भी थे, हम ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने गलतियां की हैं। जिसकी जितनी समझ होती है उतना ही काम करता है। पहले सिस्टम क्या था, मदरसे में मकतब के अंदर बच्चों को हम भेजते थे, या हम लोग जाते थे, या हमारे अब्बा वगैरह जाते थे, तो हम लोगों ने सिर्फ कुरान पढ़ाने को सबसे बड़ा अफजल काम समझा। मेरा बच्चा कुरान पढ़ना सीख गया। कभी हमारे गार्जियन ने महसूस नहीं किया कुरान खत्म हो गया, तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा खत्म करो, समझ के पढ़ो। जब बच्चा समझ के पढ़ेगा तो उसी कुरान में लिखा है कि वालिदैन के साथ होते सलूक करो। तो जब आएगा तो अपने माँ बाप के साथ कभी भी जोर आवाज से नहीं बोलेगा। अब्बू आज हम पढ़े कि वालिदैन के साथ ऊंचा आवाज, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कुरान में एक उफ तक ना बोले माँ बाप। उफ बोलते हैं ना, उफ नहीं बोलते। या तो डांट देते हैं, अब तक क्या पता है, तब पहले का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है। लगे आप लेक्चर देने, बड़ी चुपचाप आप कितने बच्चे अपने बाप को डांट देते हैं। क्यों डांट देते हैं? वो कुरान तो पढ़े लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़े। कुरान पढ़ ली, तर्जुमा नहीं पढ़े। तर्जुमा जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो जब माँ बाप से सर झुका के बात करेगा, मेरे अब्बू बहुत ऊंचा मकाम भी लिखा, ये अगर हमको 2-3 तमाचा मार भी दे बिना वजह तो हम सह लेंगे नहीं। माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा, मार सकते हैं, हक है कि नहीं? कुरान को इसी तर्जुमे से पढ़ने की जरूरत है ताकि हमारे अंदर इंसानियत पैदा हो, जिम्मेदारी पैदा हो। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 183, अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना, हाँ, जिन लोगों ने कहा कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे हुक्म दिया, हमको हुक्म दिया कि अल्लाह नुमिनु लिरसूलिन, हम किसी रसूल पर ईमान ना लाए, हत्ता यातियना बिकुर्बानी ताकुल नार, जब तक कि वो रसूल ना आ जाए, नबी ना आ जाए जो ऐसी कुर्बानी ना लेकर आए जिसको आग खा ले। एक मुजज़े का जिक्र हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से नबी आए, और खुद आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की अगर बात करें, उनके जो 2 बेटे थे हाबिल और काबिल, तो जो वो शर्त था कि कुर्बानी पेश करेंगे, तो कैसे पता चले किसी कुर्बानी कबूल हो रही है? तो अल्लाह ने एक आग का गोला भेजा, और जिसकी खेत को खा गया उसको कबूल हो गया। ये एक सिस्टम था पहले ज़माने बनी इसराइल के अंदर। यहाँ पे देखिए बयान हो रहा है, अहले किताबी का बयान हो रहा है। अल्लाह ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि इन्नल्लाह अहिदा इलैना, अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया या हमको हुक्म दिया है, अल्लाह नुमिनु लिरसूलिन, हम किसी रसूल पर ईमान ना लाए, हत्ता यातियना बिकुर्बानी ताकुल नार, जब तक कि वो रसूल ना आ जाए जो ऐसी कुर्बानी पेश करे जिसको आग खा जाए। ये उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिरे से मना करते किसी नबी पर ईमान नहीं। उनका मकसद ये था कि नबी के ज़माने में, जैसे हुआ नहीं मोहम्मद के ज़माने में, अहले किताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं करते थे, यहूद और नसारा। वो कहते थे कि हमारे नबी मूसा थे, ये कहते थे हमारे नबी ईसा है, और नबी से बढ़ के इन लोगों ने खुदा मान लिया उसको। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने के लिए उन्होंने इस आयत का गलत माना पेश किया, जबकि अल्लाह का बयान करने का मकसद क्या है? अल्लाह ने आगे बयान किया, ये जो बात तुम बोल रहे हो कि अल्लाह ही ने मना किया कि हम किसी रसूल पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वो रसूल ऐसी कुर्बानी ना पेश करे जिसको आग खा जाए। ठीक है, चलो मान लेते, अल्लाह ने चलो मान लेते। कुल ए नबी कह दीजिए, कद जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली, तहकीक के इन लोगों से पहले बहुत से रसूल आए, बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल लेकर आए,
बिल्लज़ी कुल्तुम, जो कुछ तुम कह रहे हो वो भी लेकर आना। फलिमा कतलतुमूहु, तो फिर तुमने उनको कत्ल क्यों कर दिया? इन कुल्तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो बताओ। अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात सही है, जब तक ऐसा नबी नहीं आएगा जो कुर्बानी पेश करेगा और आग उसको खा जाए। तो ऐसा नबी तो भेजे थे, तुम लोगों के दरमियान पे भेजे थे, तुमने नबी ही को कत्ल कर दिया। ईमान तो बहुत दूर की बात है, कत्ल कर दिया नबी को तुमने। अब तुम यहाँ पे कह रहे हो कि नहीं अल्लाह ने कहा कि ऐसा नबी आएगा, झूठ हुआ कि नहीं हुआ? दावा कर रहे हैं और अल्लाह कह रहा है कि हम तो भेज चुके तुम्हारे दरमियान ऐसा नबी, तुमने नबी ही को कत्ल कर दिया। अगर सच्चे हो तो बतलाओ क्यों कत्ल कर दिए, क्यों कत्ल कर दिए, क्यों नहीं तुम उस पर ईमान लाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं की जुबानी उन्हीं की तनकीर कर रहा है, इनकार कर रहा है। ये जो बात तुम कह रहे हो बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 184 184, फ़इन कज़्ज़बूका, अगर ये आपको झुठला दे, अगर ये आपको झुठला दे, आपकी तकज़ीब कर दे, फ़क़द कुज़्ज़िबा रसूलुम मिन क़ब्लिका, तो आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को झुठला चुके हैं, आप टेंशन ना लीजिए। अगर ये आपका इनकार करते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपका ईमान नहीं लाते हैं, आपका इनकार करते, झुठलाते हैं, हम नहीं मानेंगे, तो आप घबराइएगा। आपसे पहले भी बहुत से रसूल आए हैं, ये लोग इनकार कर चुके हैं, झुठला चुके हैं। जाओ बिल बय्यिनात, तो सारे के सारे नबी क्या थे? बिल बय्यिनात, वाज़े और रोशन दलील लेकर आए थे। वह ज़ुबूर, सहीफे लेकर आए थे। वल किताबिल मुनीर, और मनव्वर किताब लेकर आए। यानी बहुत से रसूल आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए तौरात लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए इंजील लेकर आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए ज़बूर लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए मुसहफ लेकर आए। इससे पहले भी रसूल आ चुके हैं और किताबें लेकर आए। उन लोगों को भी झुठला चुके हैं, तो अगर आपको भी झुठला दे तो आप टेंशन नहीं, घबराने की बात नहीं, हकीकत में ईमान लाने वाले नहीं। ये अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 185 185 में अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को, हर जान को, नफ्स और जान किसको कहते हैं? जिसके अंदर जान हो। अभी टेबल है, इसमें जान की बेजान चीज किसको क्या मौत है? मौत भी किसको है? जो जानदार है। तो मरे वो क्या मौत आई? तो ऑटोमेटिक इसमें जान है ही नहीं। इसलिए इसका तर्जुमा यही होना चाहिए कुल्लु नफ्स, हर नफ्स, हर जान जायक़तुल मौत, उसको मौत का मजा चखना। यानी ये पहला दर्स इस आयत करीमा का कि जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना। पैदा किया गया हूँ तो मिटाया भी जाऊंगा, मेरा वजूद मेरे अज़्म के जरिए, ठीक है ना? दुनिया में कोई रहने नहीं है। जो आ गया जाना है, उसको कंफर्म है, चाहे आज जाए चाहे जब जाए, जब उसका वक्त आ जाए। तो मौत से हमें इनकार नहीं होना चाहिए। एक ऐसी हकीकत है कि हमारी मर्जी हो चाहे ना हो, मरना है। कब मरेंगे ये अल्लाह ने अपने पास इसका इंफॉर्मेशन रखा, हमको नहीं मालूम। कौन कब मरेगा, किस जमीन पर मरेगा, कहाँ मरेगा, कब मरेगा, ये जानकारी हम में से किसी को नहीं मालूम। अल्लाह को लेकिन मालूम है, अल्लाह जानता है। फिर अल्लाह ने कहा जब मरना है तो वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और कल कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, अब कहानी शुरू हुई। जैसी कब्र में गए, आलम बरज़ख में चले गए, अब यहाँ से असल कहानी शुरू। ऐसा नहीं है, इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं कि मरने के बाद मामला खत्म, फिनिश। ये तो एक लाइफ कब्र के अंदर है और एक लाइफ जन्नत और जहन्नम की है। अब वहां से सिलसिला शुरू। क्यों अल्लाह कह रहा है इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कल क़यामत में लोग बदला दिए जाओगे। यानी क़यामत कायम होगी, इस पर हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। अब अल्लाह ने कहा देखिए एक सच्चाई, पूरे कुरान का निचोड़ अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि अगर पूरे कुरान ना पढ़ के इस आयत को समझ जाएंगे तो पूरे कुरान की समझ जाएंगे। आज हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है। सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, गलत नहीं है, भागना चाहिए। हर कोई सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। कोई नहीं चाहेगा कि अनसक्सेस हो, अनसक्सेसफुल हो, नाकाम हो, नाकामयाब हो जाए, नामुराद हो जाए। अल्लाह कामयाबी का राज बता रहा है। इस कुरान के अंदर अल्लाह ने बहुत से टॉप सीक्रेट रखे हुए हैं, लेकिन हम खोलेंगे तब ना जानेंगे। टॉप सीक्रेट यहाँ पे है, हम गैरों के पास जा रहे हैं कि भाई कामयाबी कैसे मिलेगी, कामयाब कैसे होंगे, सक्सेस कैसे होंगे। अल्लाह ने कहा फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ा, हकीकत वही ओरिजिनल कामयाबी। असल कामयाबी क्या है? ये दुनिया की कामयाबी अल्लाह हमारे मुंह पे मार देगा। अल्लाह को दुनिया की कामयाबी से कोई मतलब नहीं। दुनिया ही को अल्लाह पसंद नहीं करता तो दुनिया की कामयाबी क्या होती? कामयाबी चाहिए दीन दुनिया की कामयाबी। इसलिए दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। अल्लाह सिर्फ दुनिया में अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए,
आखिरत में अच्छी जिंदगी चाहिए, तो आखिरत में अच्छी जिंदगी कैसी होगी ये हमारा दुनिया तय करेगा। क्या समझ आ रही है? आखिरत की लाइफ हमको अच्छा करना है खराब करना है ये दुनिया हमारा तय करेगा। यानी हम दुनिया में पैदा हो गए, अब हमको डिसीजन लेना है कि आखिरत में अच्छी जिंदगी गुजारनी है खराब जिंदगी गुजारनी है। जाहिर सी बात हर कोई सोचेगा अच्छी जिंदगी गुजारनी है, तो अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो फजर में उठना है। फजर में नहीं उठ के नहीं डिसाइड कर लिए कि हमको आखिरत में अच्छी जिंदगी जो जहन्नम से बचा लिया है, मतलब जहन्नम में जाने वाला बुराई का कोई काम हमसे ना हो, और जन्नत में जो दाखिल हो गया यानी जन्नत में जाने वाला हर काम हमसे हो। इसका खुलासा ये है, जन्नत में जाने वाला हर काम हम करें, जहन्नम में जाने वाला कोई काम करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। फकत फाज का बनाने का कोई काम नहीं, वो ओरिजिनल कामयाब है। और जब क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान कायम होगा और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देगा, यानी नामा अमाल दाहिने हाथ में देगा कि ये लो और जाओ जन्नत के दरवाजे पर जाओ, वहां चेकआउट होगा, अंदर चले जाओ। वो असल कामयाब दुनिया देखिए। क्या इसको तो हम गरीब समझते थे, इसको तो हम फकीर समझते थे, कुछ समझते ही नहीं इसको हम, और हमसे पहले जन्नत में चला गया। या अल्लाह मेरा क्या होगा, इधर जहन्नम में इधर जन्नत है, क्या होने वाला है, पसीने में शराब हो। तो ये हमारा आज तय करेगा कल क्या। दुनिया तय करेगी तो दुनिया में कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, जहां लग्जरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो वहां जीना चाहते हैं। जिसको दुनिया मिल गई उसको आखिरत मिल गया। समझ आ रही है? दुनिया हम हासिल कर लिए, दीन को कुर्बान करके, तो आखिरत कैसे मिलेगी? दुनिया भी हमको मिल सकती है दीन को लेकर चलने की सूरत में। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो माशाल्लाह अल्लाह वाले हैं, बहुत ताउन करते हैं, डोनेशन करते हैं, और उनकी जिंदगी भी अच्छी अल्लाह दुनिया में उसको अता कर रहा है, गलत नहीं है। दीन को छोड़कर दुनिया अगर हम बना लिए तो दुनिया की जिंदगी बेमाना बेमकसूद है, बेसूद है, आखिरत में कुछ नहीं है। आगे अल्लाह ने बयान किया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर धोखे का साबित। ये दुनिया फ्रॉड है। ऐसे ऐसे चमत्कार दुनिया दिखाएगा कि दिल लग जाएगा। दुनिया में दिल लग जाएगा। नहीं, दुनिया ही सब कुछ है, इसी को पाना है, इसी को हासिल करना है, इसी में मकाम बनाना है, इसी में रुतबा और ओहदा चाहना है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह है। बचे, दुनिया से बचे, दुआ करें कि अल्लाह को दुनिया के फितने के शर से महफूज रख, या अल्लाह में नेक अमाल की तौफीक दे, अल्लाह में इस कदर नेकी करने की तौफीक दे कि बस दुनिया में इतना ही रोजी दे कि अपने बाल बच्चों की इज्जत आप पाल सके और आराम से रुक सके। जितने ज्यादा कमाएंगे कवर उतना हिसाब देना। एक एक पाई एक एक पैसे का हिसाब जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक अकाउंट सेटल नहीं होगा, तब तक अल्लाह जन्नत में नहीं जाएगा। कमाए, इसीलिए ऊपर में बयान किया गया फी सबीलिल्लाह, जितनी दौलत आ रही है अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, दिल खोल कर खर्च करें। ये वो डिपॉजिट है जिसमें आपको खसारा नुकसान नहीं, इसका अजर आपको अल्लाह दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी। आज पैसे रोक लेने की वजह से गरीबों के आज हालात देखिए हमारे हालात में क्या होंगे, बड़े बदतरीन और बड़े बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 186, अल्लाह ने कहा लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम अनफुसिकुम, हम तुमको जरूर बजरूर आजमाएंगे तुम्हारी जानों के जरिए, तुम्हारे मालों के जरिए। मान से भी आजमाएगा और जान से भी आजमाएगा। ये जान अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह के लिए हम सर्व करें। पैदा अल्लाह ने किया है, सेहत अल्लाह दिया है, आंख अल्लाह ने दिया है, दिमाग अल्लाह ने दिया, कान अल्लाह ने दिया है, नाक अल्लाह ने दिया है, दांत अल्लाह ने दिया, सब अल्लाह की दी हुई चीज सब फायदा उठा रहे हैं, सब अल्लाह ने दिया है। उसके बाद अल्लाह क्या चाह रहा है, क्या नाक काट के अल्लाह को देंगे, कान काट के? नहीं, अल्लाह चाह रहा है कि जो कुछ हमने तुमको दे रखा है, हम तुमको एक बात याद रखना, आजमाएंगे तो जरूर। ये मत सोचो कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी कर चुके हैं, ज़कात भी दे देते हैं, तो हमारी आजमाइश नहीं होगी। आजमाइश होगी, जरूर बजरूर आजमाइश होगी। 3 चीजों से अल्लाह आजमाएगा, तुम्हारे माल से और तुम्हारी जान से। अल्लाह ने दौलत दे रखा है, अल्लाह डेली चेक करता है ना। 2 फरिश्ते हैं यहाँ पे, किरामन कातिबीन जिसको बोलते हैं, और हफ्ते में 2 दिन हम लोगों का रिपोर्ट अल्लाह के यहाँ जाता है, एक सोमवार के दिन और एक जुमेरात के दिन। एक रिपोर्ट परसों चला गया जुमेरात को, अब जुमेरात से लेकर कल संडे है, कल तक का रिपोर्ट सोमवार को जाएगा अल्लाह के पास। तो अल्लाह ने जो माल दिया कितना खर्च किया अल्लाह के यहाँ, हम पर इतना ही सोच लेना कि जुमेरात से लेकर सोमवार तक अल्लाह ने हमको बहुत दिया, अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च किया। एक हकीकत सुन लीजिए, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो किसी का 50 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 150। जुमेरात से सोमवार तक अल्लाह के रास्ते में फरिश्ते रिपोर्ट बना के भेजेंगे, अल्लाह तेरे इस बंदे ने बहुत दौलत को नवाज रखा है, मंथली अच्छा पेमेंट है और खर्च किया 60 रुपया। सोचिए, सोचने वाली बात है, कुरान की ये सब तासीर, ये हकीकत है।
ये फरिश्ते रिपोर्ट बना के अल्लाह को देंगे, 60 रुपया खर्च किया तेरे रास्ते में 2 दिन। सोचिए, आप सोचिए, एक बात आपके जहन में आएगा कि ठीक है तो पैसे वालों के बारे में है, उनके बारे में है, वो चाहेंगे तो खर्च कर देंगे। जो गरीब है, जो रोजाना 200 रुपया कमाते हैं, इतनी महंगाई है, चल भी नहीं पाता है, यही सवाल अल्लाह के रसूल के ज़माने में सहाबा चले गए। वो सहाबा जो गरीब सहाबा थे वो चले गए और चौथे पारे में जो आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में से कोई भलाई उस वक्त नहीं पहुंच सके जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करें। सहाबा पहुंच गए, गरीब सहाबा बोले अल्लाह के रसूल, अमीर सहाबा तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके सवाब कमा लेंगे। उनका जुमला जो था हदीस के अंदर आया है कि अल्लाह के नबी, अमीर सहाबा तो हम पर सबकत दे गए, बाजी मार गए। अल्लाह रसूल ने पूछा क्या हुआ? आपने कहा कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, बहुत अजर है, तुमको पास दौलत तो कर देंगे हम, हमारे पास तो दौलत ही नहीं, रोजाना कमाते रोजाना खाते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी बात नहीं, हमारा सुभान अल्लाह कहना भी सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सकता है, अल्लाह अकबर कहना भी सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सकता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना सदका है। तो ये बात याद रखिए कि जैसे अमीर पैसा खर्च करके सवाब कमा रहा है, गरीब ये कलमा पढ़ेगा तो उसको सेम बराबर सवाब मिलेगा। इस्लाम में भेदभाव नहीं है, ऊपर नीचे नहीं। सोचिए, अल्लाह ने कहा तुमको जरूर बजरूर तुम्हारे माल और तुम्हारी जान से आजमाएंगे, और जब आजमाएंगे तो तुम्हारी आजमाइश ऐसी होगी, वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जिन लोगों को मैंने किताब दिया, व मिनल लज़ीना अशरकू, और जो लोग मुशरिक है, अज़न कसीरा, उनके तरफ से बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी बात तुमको सुनने को मिलेगी, ताना कसेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम सुनोगे। जब इस तरह के हालात हो जाए, कोई तुम पर ताना कसे, तुम पर तंज करे, तुमको तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुमको तकलीफ दे, बुरी बात कहे, दुख भरी बात कहे, तो क्या करना? व इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र कर लो और तकवा इख्तियार कर लो, फ इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये तमाम अमरों से बहुत बेहतर अमर है, बहुत बड़ा काम। कामयाबी का राज जो है तस्बिरु व तत्तकू, सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, सब्र करो तकवा इख्तियार करो, तो तुमने बहुत अजीम काम कर लिया। दर्स का इख्तिताम हो गया। इसके ताल्लुक से अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। बोले इमाम साहब, ज़कात है ये हर महीने निकालना है या फिर हर ज़कात जो है ना, क्या बोले, हर महीने जैसे किसी का मंथली आता है तो हर मंथली निकालना है या साल का? देखिए, सवाल ये है कि ज़कात हर महीने निकालना है कि सालाना निकालना है। ज़कात का ताल्लुक साल से, हाँ, महीने से नहीं। और वो भी उसका कंडीशन क्या समझिए, ज़कात के लिए एक है कि निसाब मुकर्रर है, सब लोग ज़कात नहीं निकाल सकते। 2 चीज पाया गया ज़कात निकालना है, और 2 में से एक भी है और एक नहीं है, ज़कात नहीं निकालना है। पहला, माल निसाब को पहुंचे, और दूसरा वो चीज आपके पास 1 साल से, जैसे 2.5 लाख रुपए पर ज़कात निकालना है और ये 2.5 लाख रुपए आपके पास 11 महीने से, तो आप ज़कात नहीं निकालेंगे। जैसे ही 12 महीना हुआ, उसमें से 50,000 रुपये घट गए, कुछ काम में लगा दिए, काम पड़ गया, अब 2 लाख हो गया, साल तो लग गया, लेकिन निसाब नहीं मिल रहा है, तो अब ज़कात नहीं निकालनी। मिसाल दी, ज़कात निकालने के लिए ज़कात पहली बार सालाना निकलेगा, और 2 शर्त होना चाहिए, माल निसाब को पहुंचे और उस पर 1 साल का वक्त गुजरेगा तो ही ज़कात। अब रहा सवाल महाना या वीकली जो है हम सबका खैरात करते हैं, इसको ना रोका, इसको करते रहे, और इसमें कोई लिमिट नहीं, इतना रहेगा तो ही सबका करेंगे, तो नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत सा दोस्त यार हम लोग पैसा दे दे करके कर्जा है, हाँ, तो एक दोस्त ने मांग लिया 300-400 रुपया, उसको दे दी, चल उसको दिला तो रिटर्न कर, बट वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया रिटर्न नहीं किया। अब फिर से वो अगर आएगा रिटर्न पैसा मांगने के लिए, वो 500 रुपये 400 रुपये चाहिए कर, वो दे दो, दे दे। सिचुएशन में क्या है, देना है या नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे देने का मतलब कि रिटर्न नहीं आएगा, या आएगा तो साल लग जाएगा, 6 महीने बहुत रिक्वेस्ट करने पे आएगा तो आएगा, तो वो भी नहीं आएगा। देखिए, सवाल ये कि एक आदमी है, कोई दोस्त है, हमसे कर्ज मांगा, तो मिसाल के तौर पे 10 रुपये हम दे दिए, ठीक है, वो बोला कि हम 5 दिन 10 दिन में लौटा देंगे, मतलब 10 रुपये उसको हम दे दिए, लेकिन 5-10 दिन के बाद या महीना 2 महीना साल गुजर गए, तो वापस नहीं आया, और फिर दोबारा अगर मेरे पास आता है कि भाई हमको फिर जरूरत है, या पैसे की मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए नहीं दे पाए, अच्छा अभी दे, तो हम बाद में जो है तुमको हम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि कर्ज लेने वाला ही अपना माहौल खराब कर दिया, यानी एतमाद खो दिया, अब हमको उस पर भरोसा नहीं,
तो आप उसको मत दीजिए, गलत नहीं है, अगर नहीं देते तो गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार जो है बहुत ज्यादा परेशान है, चलो नहीं दिया, तो है कुरान में अगर तुम माफ कर दो तो क्या है, अगर तुम कर्ज माफ कर दो तो समझे कि आप आखिरत में बहुत बड़ा अजर के आप मालिक बन गए। अब आपको पता चला कि नहीं इस बार बहुत ज्यादा नहीं भी परेशान है, कर्ज मांगने आया है, तो ये अब आपका ईमान तय करेगा, या तो आप उसके बदअखलाकी पर मत दीजिए, आप गुनहगार नहीं होंगे, या फिर चलो अल्लाह ने इस लायक बनाया कि चल के आ रहा है तो उसको दे दीजिए, फिर आपको शक होगा कि हम देते रहेंगे तो आदत बना लेगा। तो आपको दोनों रास्ता आपको इख्तियारी है, आप दोनों में से कोई रास्ता ले सकते हैं। आप गुनहगार नहीं देते तो भी गुनहगार नहीं होगा, देते तो भी गुनहगार नहीं होंगे। अजान हो रही है, इंशाअल्लाह ताला अजान के बाद दोबारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। देखिए ऑनलाइन में एक सवाल है कि जो लोग हसास होने के बावजूद भी तौबा में ताखीर करते हैं, पूरा कंप्लीट सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से यही होगा कि उन लोगों का क्या हुक्म है, कुरान में या हदीस में क्या हुक्म है। देखिए तौबा का मतलब क्या होता है, पलट जाए, ताबा या तुबुक मतलब लौटना, वापस लौटना, रुजू करना। एक आदमी ऐसे जा रहा है, गुनाह करते करते जा रहा है, सामने एक खाई आती है, समझ रहा है खाई में जाएगी तो गिर जाएगी, जो वहाँ पर पलटा उसी को तौबा करते हैं। पलटने का मतलब ये होगा गुनाह की है। तो तौबा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और अल्लाह ताला अगर तौबा की तौफीक जिंदगी में दे दे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो दुनिया में बुराई करते चले गए और दुनिया ही से चले गए, उनको तौबा की तौफीक ही नहीं। कुरान में ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलैहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो। तो हसास होने का मतलब ये होगा कि एक आदमी को एहसास है कि हम गलती कर रहे हैं, हमको तौबा करना चाहिए, अब वो तौबा नहीं करता तो अब समझ जाए कि वो अल्लाह की नेमत से महरूम है, उसको बदकिस्मत भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने उसको मौका दे रहा है, उसको एहसास भी हो गया, एहसास मतलब महसूस कर रहा है। एक आदमी महसूस ही नहीं कर रहा तो छोड़िए गफलत में, महसूस हो गया कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन वो तौबा नहीं कर रहा तो गलती कर रहा है, क्योंकि मौत का तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि हम जवान है, अभी नहीं मरेंगे, बाद में मरेंगे, तो गलत फहमी में हम जी रहे हैं। तो तौबा करनी चाहिए, और तौबा भी कैसी तौबा, सच्ची तौबा, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तौबा को कबूल करेगा। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला बेशक तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। दूसरा सवाल ये है कि एक बहन का सवाल है कि प्रॉपर्टी जमीन या घर की शक्ल में है, और अगर उस पर भी निसाब लागू हो जाता है तो क्या उसमें से हम ज़कात निकालेंगे। तो इसमें थोड़ा जमीन जरात में क्या मसला है, कोई जमीन क्या हम तिजारत के लिए या बिजनेस के लिए लिए हुए हैं या घर बनाने के लिए लिए हुए हैं। अगर वो जमीन घर बनाने के लिए है या जिस घर में रहते हैं तो उस पर ज़कात नहीं, उस पर ज़कात नहीं है। हाँ हम डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उस पर काम करते हैं तो उसमें हमारा ज़कात है। तो ये तो जाहिर सी बात है, किसी के घर है, कहीं 2-3 कट्ठा जमीन खरीद लिया, वो तो घर बनाने के लिए उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि उससे आपको फायदा नहीं है। नियत है कि हाँ जमीन लेकर छोड़े हुए हैं, दाम बढ़ेगा तो उसको जो है हम बेचेंगे, है ना, तब उस पर ज़कात निकाला जाएगा। 3-4 जगह जमीन लेके रख दिए तो क्या उसके ऊपर हो? नियत के ऊपर है, लेने का एक मकसद जगह मेरा घर है, हाँ ऑलरेडी बना हुआ, तो 3-4 जगह मेरा जमीन, तो क्या उसके ऊपर वही पूछ रहे कि नियत क्यों 3-4 जगह क्यों लिया? बनाना होता है ना, एक तो जगह कोई बनाना नहीं, पड़ेगा। या तो रहना होगा या तो फ्यूचर में दो तरह से लोग जमीन लेते हैं कि अगर दाम बढ़ेगा तो बेच दो। एक नियत ये होती है कि अगर कीमत बढ़ गई तो उसको हम बेच देंगे, मुनाफा कमाएंगे। आपको सिर्फ ये होता है कि नहीं बाल बच्चों के लिए रहेगा, आगे चल के जमीन के हालात कैसे नहीं होंगे, तो नियत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फायदा कमाना नहीं तो ज़कात है, नहीं नियत तो कोई बात नहीं। हाँ सर, सवाल में उस भाई ने एक सवाल ऐड किया कि अगर उसी जमीन में हम खेती करें तो उसमें ज़कात होगी। हाँ उस जमीन पर अगर खेती करेंगे तो खेती वाली ज़कात है, जमीन से जो अनाज उगेगा उस पर ज़कात है। जैसे कि अभी जो शिकायत था तो जो नस्ल गाय के जो वो जो आयत है वो किस कंडीशन में कैसे क्यों उठ रहा है, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस कंडीशन में मतलब ये आयत आया है, नाज़िल हुई है, ठीक है? हाँ तो सारे बुजुर्ग बताएंगे। हाँ तो इसमें तो कोई शर्म नुज़ूल नहीं है, कुरान की जितनी आयत है ना सारी आयत मतलब सबक की वजह से नाजिल नहीं हुआ। जैसे कुछ आयत नाजिल हुआ है कोई सिचुएशन है, जैसे आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगा दी है ना, नाउज़ुबिल्लाह का बच्चा नहीं तोहमत लग गया, तो उस तोहमत की दिफा के लिए अल्लाह ताला ने सूरह नूर के 10 आयतें नाजिल करी कि नहीं वो पाक दामन है ना। शराब उस जमाने में पिया जाता था, फिर आयत उतर गई उसको ख़त्म करने की। तो हर आयत जरूरी नहीं कि सबब से नाजिल हुआ, कुछ आयत नाजिल हुआ है ऑर्डर के लिए कि नमाज पढ़े, अकीमुस्सलात व आतिज़ ज़कात, आप नमाज पढ़े ज़कात अदा करें, रुकू करने वालों के साथ रुकू करें, सजदा करने वालों सजदा करें,
ये वो आयत उसी जिम्न है, इसमें कोई ऐसा मतलब छानुजुल बोलकर नहीं है, इसमें ये बतलाने के लिए आयत नाजिल हुआ कि जो इंसान दुनिया पैदा हुआ है तो इसको सुन रहा है। अभी आयत जब नबी के पूछते लिए सुनने वाले कौन थे? सहाबा थे। तो सहाबा को ये ऑर्डर हो रहा है, सहाबा तक हम तक पहुंच गई, हमारे बाद हमारे बच्चों तक पहुंचेगी इंशाल्लाह क़यामत के सुबह तक। ये बतलाने के लिए कि मरना सबको, कोई दुनिया में जीने के लिए नहीं आया है, इसलिए कि हय्युल क़य्यूम सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह ही वो जात है जिसको मौत नहीं है, अल्लाह के अलावा सबको मौत है। मैं सवाल है गलत है वो तो सही है। आपने फरमाया कि खर्च करना चाहिए, मैं मासूम खर्च करता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि फजूल खर्ची लगते हैं मुझे, तो डिफरेंस कैसे होगा, समझ में कैसे आएगी कौन सा फजूल खर्ची में जा रही है और कौन सा खर्च हो रहा है? जैसे फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई, तो देखिए सवाल है कि हम जैसे कोई लड़का है तो खर्च कर रहा है अल्लाह के रास्ते में, लेकिन वो कंफ्यूज है कि हम सही जगह खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही जगह जा रहा है कि गलत जगह जा रहा है। तो हम तो बताएं अभी दर्स के अंदर कि अल्लाह का रास्ते कौन कौन से, किसी की मदद कर देना, यतीम की किफायत कर देना, गरीब बेवा की मदद करना, किसी को कपड़े पहना देना, फकीर को देखना, ये सब जो है अल्लाह के रास्ते मस्जिद मदारिस पर खर्च करना और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, ये सब अल्लाह के रास्ते। अब फजूल खर्ची क्या है कि एक जगह जहाँ खर्च बन नहीं रहा है बस्ती में खर्च करती है, ये तो फजूल खर्ची हो गई ना, ये तो फजूल खर्ची है, तो अल्लाह के रास्ते हैं। फजूल खर्ची क्या बोलते हैं? क्योंकि एक जगह रास्ता है ही नहीं, मतलब वहाँ जगह ही नहीं रहा खर्च करेंगे, जबरदस्ती करते तो फजूल खर्ची हो गई। हम सब एक और सवाल है, आपने कुरान के बारे में बात की है, आपने पढ़ना हो तो तर्जुमे के साथ, तो इसमें एक भाई ने सवाल किया है कि सबसे पहले कोई कुरान की तारीफ हासिल करना चाहे तो उसको सही से पढ़ना सीखना बेहतर है या सबसे पहले समझना? अगर वो इंसान शुरू कर रहा हो, यानी कोई बच्चा या कोई ऐसा शख्स जो दोनों ही ना जानता हो, ना पढ़ना ना ही कभी उसको समझा, तो क्या करे पहले बेहतर है, पहले सीखे या पहले समझे उसको? ये सवाल बहुत लंबा है, लेकिन ऑफिसर सवाल ये है कि अभी अब दर्स में बताए हैं कि कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। तो अब कोई आदमी है जो पढ़ना अरबी नहीं पढ़ना जानता और समझना तो बहुत दूर की बात है। अब जब स्टार्ट करेगा तो पहले क्या करेगा? पहले कुरान समझना शुरू करेगा, पहले पढ़ना शुरू करेगा? देखिए कुरान की तो बहुत सारी फजीलत है, तिलावत की तो बहुत फजीलत है। तो अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ो, खुशनुमा आवाज़ में पढ़ो ताकि सुनने वालों को मशहूर कर दें, अच्छी किरत करो। तो सबसे पहले हम कुरान पढ़ना सीखें। कैसे पढ़ने का सिलसिला है, नूरानी कायदा है, फिर उसके बाद अम्मा पारा है, फिर कुरान है, सीखेंगे, सीखने के बाद तर्जुमा सीखेंगे। तरीका यही है। और इमाम साहब, ये जो कुरान में आया है कि अहले किताब और नबी को कत्ल किया, क्यों किया है, क्या कौन नबी को किया गया? दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, और भी बहुत सारे। फिर तो अंबिया का लफ्ज़ है, नबी की जमा अंबिया है। हाँ, जमा कैसे रहेगा? वो लोग इस शरारतों का जानते हैं ना, शुरू से ही देखे उनका अहले किताब के हालात। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सनीचर को मछली मत पकड़ो, तो फिर देखे बदमाशी करने लगे, ये मत करो तो बछड़े को माबूद उन लोगों ने बनाया। अरे जिस चीज़ के बारे में मना किया जाए उसी चीज़ को करते थे, बहुत शरारतें करते थे, यहाँ तक कि नबियों को करते थे। नहीं दर्स के इख्तिताम के ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार या रब, तो हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा दे, हम में से जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, और जो जिस मुसीबत दिक्कत में फंसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी चीज़ें आसानियाँ उनके लिए आसानी पैदा फरमा और हमारे लिए हराम रिज़्क़ अता फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।